Morning everyone, I am Manisha ma'am, math teacher from MLP International School Rajpura. Let we start our math online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our exercise 8.5. Today we will start our exercise 8.6. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इच पार्ट्स के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए में गिवन है 8 रुपीज 37 पैसे मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ 5 7 जा 35, 5 3 carry, 5 3 जा 15 plus 3 carry 18, 8 1 carry, 5 8 जा 40 plus 1 carry 41. So students, 8 rupees 37 paise multiply by 5 is equal to 41 rupees 85 paise. I think you understand. Now we do next question. Question number C, 86 rupees 48 paise multiply by 4. Now we start multiplication. 4 8 जा 32, 2 3 carry, 4 4 जा 16 plus 3 carry 19, 9 1 carry, 4 6 जा 24 plus 1 carry 25, 5 2 carry, 4 8 जा 32 plus 2 carry 34. So students, 86 rupees 48 paise multiply by 4 is equal to 345 rupees 92 paise. I think students you understand. Now we do next part. Part D student, part D में रुपीज में 3 डिजिट्स गिवन है. पार्ट ए में 1 डिजिट गिवन थी और पार्ट बी और सी में रुपीज के अंदर 2 डिजिट्स गिवन थी. Now we start part D. 62 rupees 45 पैसे multiply by 6. Now we start multiplication. 6 5 जा 30, 0 3 carry, 6 4 जा 24 plus 3 carry 27, 7 2 carry, 6 2 जा 12 plus 2 carry 14, 4 1 carry, 6 3 जा 18 plus 1 carry 19, 9 1 carry, 6 6 जा 36 plus 1 carry 37. So students, 632 rupees 45 paise multiply by 6 is equal to 3794 rupees 70 paise. I think students you understand. Now we do next part. Part F, 804 rupees 35 paise multiply by 7. Now we start multiplication. 7 5 जा 35, 5 3 carry, 7 3 जा 21 plus 3 carry 24, 4 2 carry, 7 4 जा 28 plus 2 carry 30, 0 3 carry, 7 0 0. क्योंकि किसी भी नंबर की टेबल 0 तक नहीं होती है. 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है. 7 0 0 plus 3 carry 3, 7 8 जा 56. So students, 804 rupees 35 paise multiply by 7 is equal to 5630 rupees 45 paise. I think students you understand. So you can easily do remaining parts B and E. Thank you students. Have a nice day. Good morning dear students, welcome to our YouTube channel. I am your English teacher for class 3rd. In the previous video we did completed chapter 12. Today I will start chapter 12. Chapter name is I wish I were. Kash मैं होता. So let's start. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. प्रातः जब 10 बज जाता है तब घंटा बजता है और मैं अपनी गली से गुजर कर स्कूल जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. और मैं हर दिन यह देखता हूँ कि एक फेरी वाला घूमता रहता है और चिल्लाता रहता है ऊंची ऊंची आवाज़ में, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. नो प्लेस मस्ट गो टू. नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. उसे कोई जल्दी नहीं होती. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. वह किसी भी सड़क पर जा सकता है. नो प्लेस मस्ट गो टू. नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम. वह किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचता. उसे कोई निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचना होता है. वह उसे कोई जल्दी नहीं होती, ना ही वह किसी सड़क पर जा सकता है. उसे किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचना होता. आई विश आई वर ए होकर स्पेंडिंग माई डे इन रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल. काश मैं भी एक फेरी वाला होता, अपना समय दिन में
घूमते बिताता और आवाज़ करता कि चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the morning I come back from school, शाम 4 बजे जब मैं स्कूल में लौटता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मैं उस गेट के अंदर गली को ज़मीन में माली को ज़मीन खोदते देखता हूँ। जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस लौटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस माली को ज़मीन में खोदते हुए। He does what he likes with his spade. वह अपना फावड़ा चलाकर जो मर्जी करता है। He soils his clothes with the dust. वह अपने कपड़े गंदे कर लेता है। Nobody takes him to task if he bakes in the sun or gets wet. वह धूप में अपने कपड़े को गंदा कर लेता है यदि वह धूप में तप जाता है अथवा वर्षा में भीग जाता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. मेरी भी यह इच्छा है कि मैं भी माली होता, बगीचे में मिट्टी खोदता। गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे उस काम से करने में कोई नहीं रोकता। सो डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर at your home. So thank you. Have a nice day. Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Today we discuss our chapter number 33, Musician and Singers. Given below are the pictures of some well-known musician and singers. Students, we have some famous musician and singers picture in this chapter. Can you identify them? क्या आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. स्टूडेंट्स, सी वी हैव हेल्प बॉक्स इन द एंड ऑफ चैप्टर. टेक हेल्प फ्रॉम दिस बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स. स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट पिक्चर इन आवर चैप्टर. आप देख सकते हैं इस पिक्चर को आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है. और ये किसकी पिक्चर है? लता मंगेशकर. LATA लता, MANGESHKAR मंगेशकर, लता मंगेशकर. सेकंड पिक्चर आप देख सकते हैं AR रहमान, ARREHMAN रहमान. सेकंड पिक्चर जो हमारी इस चैप्टर में वो किसकी है? AR रहमान. थर्ड पिक्चर रिकॉग्नाइज करेंगे एंड राइट जगजीत सिंह, JAGJEET जगजीत, SINGH सिंह, जगजीत सिंह. फोर्थ पिक्चर एंड राइट सोनू निगम, SONU सोनू, NIGAM निगम, सोनू निगम. फोर्थ पिक्चर हमारे चैप्टर में किसकी है? सोनू निगम की. फिफ्थ वन, सी फिफ्थ पिक्चर. हेयर इज द पिक्चर ऑफ उदित नारायण, UDIT उदित, NARAYAN नारायण, उदित नारायण. नेक्स्ट वन इज विशाल एंड शेखर, VISHAL विशाल एंड SHEKHAR शेखर, विशाल एंड शेखर. जो हमारी सिक्स्थ पिक्चर है हमारे चैप्टर में वो किसकी है? विशाल एंड शेखर. सेवंथ वन इज शकीरा, SHAKEERA शकीरा. सेवंथ पिक्चर इन आवर चैप्टर इज शकीराज पिक्चर. शकीरा की पिक्चर गिवन है सेवंथ नंबर पे. सो राइट SHAKEERA शकीरा. सी एट्थ पिक्चर कविता कृष्णा मूर्ति, KAVITA कविता, KAVITA कविता, KRISHNA कृष्णा, MURTI मूर्ति, कविता कृष्णा मूर्ति.
नेक्स्ट आप देख सकते हैं पिक्चर है माइकल जैक्सन, MICHAEL माइकल, JACKSON जैक्सन, माइकल जैक्सन। 10th इज सुनिधि चौहान, SUNIDHI सुनिधि, CHAUHAN चौहान, सुनिधि चौहान। नेक्स्ट इज रिकी मार्टिन, RICKY रिकी, MARTIN मार्टिन, रिकी मार्टिन की पिक्चर गिवन है 11th नंबर पे। एंड 12th वन इज प्रीतम, 12th पिक्चर हमारे चैप्टर में किसकी है? प्रीतम की, PREETAM प्रीतम। सो लेट्स रिवाइज अगेन अवर चैप्टर। फर्स्ट पिक्चर लता मंगेशकर, सेकंड इज AR रहमान, थर्ड इज जगजीत सिंह, फोर्थ वन इज सोनू निगम, फिफ्थ वन इज उदित नारायण, सिक्स्थ इज विशाल एंड शेखर, सेवंथ इज शकीरा, एट्थ पिक्चर कविता कृष्णा मूर्ति, नेक्स्ट इज माइकल जैक्सन, 10th इज सुनिधि चौहान, 11th इज रिकी मार्टिन and 12th is Preetham. So today we discuss our chapter number 33, musician and singers. In this chapter we have some great personalities of musician and singers. We recognize them and write their names in the given space. So students, जैसा कि मैंने फिल किया है अपनी बुक में, ऐसे ही आपको फिल करना है and collect the pictures from the Google or your previous GK book and paste them in your fair notebook and write their name, write their musician and singer's name neatly and cleanly. I hope you understand our today's topic, musician and singers. Thank you. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में कल हमने पढ़ा था पाठ 11, आओ साथ चले। आज हम करेंगे उसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। समस्याओं, आवश्यकता, ज़रूरत, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, कारखानों, प्रिंटिंग, पोषण, आहार। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आप सभी ने पाठ को ध्यान से पढ़ा था, समझ में आ गया था। अभी हम प्रश्न पढ़ते हैं। कहीं दूर जाने के लिए आपको किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप सभी को पता है कि हमें कहीं दूर जाने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है। कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और भी बहुत सारे साधन हैं। ठीक है। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर के पास। आगे है, छात्रों को वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए उन्हें कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? अध्यापक। अगला प्रश्न है, फर्नीचर कौन बनाता है? तो इसका उत्तर होगा बढ़ई। हमारा लास्ट प्रश्न है, मौखिक प्रश्न का लास्ट प्रश्न क्या है? हमारे लिए अन्न कौन पैदा करता है? अनाज कौन पैदा करता है? किसान। अभी हम करेंगे लिखित प्रश्न और इसमें हमारा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, इलाज करना डॉक्टर का काम है तो खेती करना डैश का काम है? किसका? ड्राइवर का, किसान का या दुकानदार का? तो खेती कौन करता है बच्चों? किसान। तो यहाँ पर हम लगाएंगे किसान पर सही का निशान। अगला प्रश्न है, लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा कहाँ से निकलता है? खान से, गोदाम से या नदी से? तो इसका सही उत्तर होगा खान से। अगला प्रश्न है, चिट्ठी भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? चिट्ठी यानी पत्र भेजने के लिए, चिट्ठी भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? हवाई जहाज, रेल या डाकघर?
तो आप सभी को पता है कि हम अपनी जो है चिट्ठी कहाँ से भेजते हैं, डाकघर से। यहाँ पर हम डाकघर पर सही का निशान लगाएंगे। आगे हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। छात्रों को डैश पढ़ाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अध्यापक। तो यहाँ हम लिखेंगे अध्यापक। कौन पढ़ाता है छात्रों को? अध्यापक। ठीक है। आगे है इलाज करना डैश का काम है। इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर। इलाज करना डॉक्टर का काम है। अगला वाक्य है किसान हमारे लिए डैश पैदा करता है। किसान क्या पैदा करता है हमारे लिए? अन्न। क्या पैदा करता है? अन्न। किसान हमारे लिए अन्न पैदा करता है। अगला वाक्य है सीमेंट डैश में बनता है। कहाँ बनता है सीमेंट? कारखानों में। कारखानों। कारखानों। सीमेंट कारखानों में बनता है। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए। सॉरी, हमारा एक जो है वाक्य रह गया है। घर, सड़क, पुल आदि का निर्माण डैश करते हैं। तो कौन करते हैं इनका निर्माण? इंजीनियर। इंजीनियर। घर, सड़क, पुल आदि का निर्माण इंजीनियर करते हैं। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।